نہیں میں جانتا ہی نہیں گا احمد بھائی شروع ہو گیا بولو بولو یہ گالی بات آ گیا یہ کر کے ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੁਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ ਸਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਸ। ٹھیک ہو کیونکہ گیا ساری صلاح کرنا چاہتے ہیں، اسی بہت گناہگار خطاکار تے غلط لوگ، وہ نے متقی پرہیزگار نیک لوگ نے، وہ ساری صلاح کرنا چاہتے ہیں، پیچھے رہو نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بس اللہ تعالیٰ جزا دے، سارے مسلمان انجی پہ کرتے ہیں سوائے چند کے لوگوں دے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے۔ بلال بھائی صبح دے آ کے چپ کڑوپ کر کے بیٹھے، نہ سلام نہ دعا۔ استاد محترم ادب ہے نا، اتوں نہ دوسری براڈ بھی لائی ہوں جی، میرا خیال ہے جڑا نالے ادب کر دینے ٹوٹا۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ عمر بھائی تو ایک شعر سنایا ہی، اور زلفوں تے زلفوں والا آندھی تے کو جکھڑ تے کو زلفوں والا، وہ شعر تو سنا دیو۔ شفق دھنک مہتاب گھٹائیں، تارے نغمے بجلی پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ شفق دا مراد گلاں نے، محبوب دیاں گلاں، دھنک تو مراد او دا لباس ہے، مہتاب تو مراد او دا چہرہ ہے۔ اے جے استعارہ، ایک استعارہ مرزا صاحب نے عامر بھائی ایک اور شعر کی بھی تشریح کر دیں۔ کرم خاکی ہوں اے پیارے، نہ آدم ذات ہوں، اے مرزا صاحب کا اشتہار ہے نا، ایک اشتہارے نے۔ یہ شعر یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہی میں دسنے لگا ہوں کہ ایک اشتہارہ مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے کہ دودھ پیو آ کے اس پستان کی طرف سے آ جاؤ، اس پستان سے تمہیں دودھ ملے گا، یہ مرزا صاحب کے اشتہارے ہیں۔ اور ایک استعارہ یہ ہے کہ شفق دھنک مہتاب گھٹائیں، تارے نغمے بجلی پھول۔ شفق سے مراد گال ہے، دھنک سے مراد لباس ہے، مہتاب سے عامر بھائی ایک گل یاد آ گئی ہے کہ جڑا تو کہ پہچان ما ارمے lui voleva fare tutti quanti vengano mi fanno buchinare۔ استاد محترم تھلے باجی سلام لے رہے نے، باجی صفیہ آ گئے نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نہیں دیکھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ میں تو ہی دس دیتا ہے۔ عامر بھائی lui voleva che le gente vengano mi fanno buchinare۔ بس ایسے طرح نے مرزا صاحب کے اشتہارے اس طرح دے۔ لو بھائی ایک تو میں ڈیڑے پڑھایا، دوجا ایک میں تھک کے گلاں کر کر، تسی گلاں نہیں کرتے۔ جنہ تک تانوں گاہک نہ لبے تھک جاندے ہو تسی، وچ گاہک لبنا چاہیے۔ میں عامر بھائی ہے اس سیکا دی محنت کرے نا، آج تھلے کوئی لکھتا پہ ہے ملک جواب دے دے نا، تھلے کوئی لکھ لگے آؤ۔ علی خود توہین کرواتا ہے۔ علی کون؟ علی مرزا صاحب دی کیڑی توہین ہوندی ہے بھائی؟ ساڈے واسطے ساڈی شریعت اجازت دیندی ہے کہ آبد بھی آئے، آبی انہوں چکو، آبد نہیں صرف ڈی پی والا، میٹی انہوں
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਵਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਰੂਫ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਰੂਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਤਾੜਾ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਫਾਲਤੂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਘਰ ਛੁਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਹਿਰੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨੋ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ सूरत अल मेहदी PDF सीरत मेहंदी सूरत नहीं। यार इन्हें समझ ही नहीं आती। आमिर भाई अगर तुसा मैं तो पूछो ना कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने ईसा अलैहि सलाम नबी ने अगर यही गल तो सिकर तो पूछो ना कि मिर्जा साहब नबी ने, ये अब देखना पड़ेगा वो कैसे नबी हैं। और एक जिली ब्रूजी जिसने खुद किया होया कि मैं आम बोल चाल दे विच मैं नबी तुसा कहना ही नहीं है, यानी कि मैं कोई नबी नहीं हाँ। ਉਹਨੂੰ ਢਿੰਗੀ ਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੀਰਤ ਅਲ ਮਹਿਦੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 800 ਸਫੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੇਖੀ ਦੀ ਨਾ 272 ਅਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਵਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ 800 ਪੇਜ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਹਿੱਸਾ ਦੋਮ ਖੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਦੋਮ, ਇਹਦੇ 400 ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਖੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰਮ ਪੰਜਮ। ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਵਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਤੇ ਹੁਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੀਰਤ ਅਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ 215, ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ 645। ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ? ਵਾਲੀਅਮ 1 5 ਸਫੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਜਲਦ ਬੱਬਲ ਚ ਵਾਲੀਅਮ 1 ਚ। ਹਾਂ ਵਾਲੀਅਮ 1 ਹੈ ਕਿ 2 ਹੈ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁਣ? ਹੁਣ 1 ਪਹਿਲੇ 2 ਖੋਲਿਆ, 1 ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ 2, ਹੁਣ ਫਿਰ 1 ਖੋਲਣਾ ਵਾ। 1 ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਫੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? 800 ਤੇ 29 29 600 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 600 ਖੋਲ। 600 ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਫੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 604 ਸਫਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੋਲੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸਫੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ 635 ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम मौलवी गुलाम हुसैन साहब डंगवी। 635 ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ
یہ 600 صفحے تے 635 ہے تے 272 صفحہ کھول حملہ 272 سمجھ گیا ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ 272 صفحے ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ 290 ਚਲਾ ਗਿਆ 85 ਚ ਆ ਗਿਆ دو سو 73 ਤੇ 272 272 ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 272 ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਅਗਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੂਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਫਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ 302 ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ब्रैकेट नंबर 302 बयान किया मुफ्ती ठीक है 302 ਤੇ ਆ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫਾ ਹੈ 302 ਵਾਲਾ 273 273 260 ਖੋਲੋ 260 हाँ 244 सफा खोल 247 ताली पे आ गया 273 भी है 274 भी 275 ब्रैकेट है त्रै ब्रैकेट ने ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 273 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 272 ਹੈ अच्छा 272 आ गई है ਪੜੋ ਹਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ये लिखा ने जी 272 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बयान किया मुझसे मियाँ अब्दुल्ला साहब सनोरी ने कि एक दफ़ा अम्बाला के एक शख्स ने हज़रत साहब से फतवा दरियाफ्त किया हज़रत साहब से मुराद मिर्ज़ा साहब ने हाँ कि मेरी एक बहन कंचनी थी सुभान अल्लाह अच्छा जी ये ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੁਝਸੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ एक दफ़ा अम्बाला ने एक शख्स ने हज़रत साहब से फतवा दरियाफ्त किया कि मेरी एक बहन कंचनी थी अच्छा उसने इस हालत में बहुत सा रुपया कमाया फिर वो मर गई अच्छा अच्छा मतलब कंचनी की हालत विच उन्हें काफ़ी माल दौलत कमाया तो फिर वो फौत हो गई जी हाँ। और मुझे इसका तरका मिला यानी भाई नूं उहदा हिस्सा मिलिया फिर भैन दी उस कमाई दा जी हाँ। मगर बाद में मुझे अल्लाह ताला ने तौबा और इस्लाह की तौफीक दी ਤੇ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ अब मैं इसके माल को क्या करूँ तो वो मिर्ज़ा साहब दी हाज़र खिदमत च हाज़र होया कि मिर्ज़ा साहब को फतवा लैन के पैसे मैं की करा यही मतलब बनता है ना पंजाबी बिल्कुल ठीक हज़रत साहब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हमारे ख्याल में इस ज़माना में ऐसा माल इस्लाम की खिदमत में खर्च हो सकता है सुभान अल्लाह नहीं ये हजरत साहब कौन है और हजरत साहब तो कोई भी हो सकते थे आगे पढ़ो पूरा मुकम्मल हो गया नहीं हजरत साहब ने जवाब दिया कि हमारे हजरत साहब फरमाते ने कि मेरे ख्याल विच इस ज़माना विच हाँ उस ज़माना जिस ज़माना च हजरत साहब खुद मौजूद सन कि इस तरह का जिहड़ा माल है ना इस्लाम की खिदमत विच खर्च करो तो ये जायज़ है इहदे च कोई हरज वाली गल नहीं है ये हजरत साहब का जवाब है जी हाँ। फिर मिसाल देकर बयान किया कि अगर किसी शख्स पर कोई सगे दीवाना हमला करे फिर अगे मिसाल दे रहे हैं कि अगर किसी शख्स पर कोई सगे दीवाना की होया पागल कुत्ता हल्का कुत्ता अच्छा अच्छा सगे दीवाना हमला कर पड़े ठीक है करे और इसके पास उस वक्त कोई चीज़ अपने दफा के लिए ना हो ना सोटी ना पत्थर वगैरह सिर्फ चंद नजासत में पड़े हुए पैसे इसके करीब हों तो क्या वह अपनी जान की हिफाजत के लिए इन पैसों को उठाकर उस कुत्ते को ना दे मारेगा
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵਿੜ ਜਾਏ, Yeah. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੋਟੀ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ, ਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਜਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋਈ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤੀ, ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਨਜਾਸਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਕੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਖਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚੁਆਨੀਆਂ ਉਹ ਜਾਨੀਆਂ ਕਈ ਪਈਆਂ ਦਫਾ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਆਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ 5 ਪੈਸਾ 10 ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਗਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਖਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਉਸ ਮਿਸਾਲ। ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟੀਕੇ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਾਰੇ 8 ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਰਵਾयत ਨੂੰ। और इस वजह से रुक जाएगा कि ये पैसे एक नजासत की नाली में पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो पैसे सिक्के चुक के कुत्ते ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਸਤ ਵਿੱਚ मैं तो नहीं चुकागा, मैनू कुत्ता वढ़दा है वढ़न दवो। और हरगिज़ नहीं, कहने को इस तरह हरगिज़ नहीं करेगा। पास इस तरह इस ज़माने में जो इस्लाम की हालत है इसे मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहते हैं कि ये रुपया को खिदमत इस्लाम में लगाया जा सकता है। वो इजाज़त दे रहे हैं कि पैसे जिस तरह नहीं हुण इस्लाम की हालत है, मतलब है कि इस्लाम मुसलमान कमज़ोर ने गरीब ने तो ये पैसे लाए जा सकते हैं। मियाँ अब्दुल्ला साहब ने बयान किया कि इस ज़माना में जब के जेब की ये बात है, आजकल वाले अंग्रेज़ी पैसे ज़्यादा राज ना थे बल्कि मोटे मोटे बद्दे से पैसे चलते थे, बल्कि थल्ले सफ़े पर आकर मंसूरी पैसे कहते थे, जिनको मंसूरी पैसे कहते। खाकसार अर्ज़ करता है कि इस ज़माना में खिदमत इस्लाम के लिए बाइस शरात के मतहत सूदी रुपये के खर्च किए जाने का फतवा भी हज़रत साहब ने पढ़ पढ़ कख नहीं होने लगा, कख नहीं होने लगा, होगा चुक पैर नहीं हो मरन लिया, तू पढ़ेगा उच्ची आवाज च। सूदी रुपया नु की होया है? एक मिनट सूद वाला अर्ज़ करता है कि इस ज़माना में खिदमत इस्लाम के लिए बाइस शरात के मुताबिक सूदी रुपया के खर्च किए जाने का फतवा भी हज़रत साहब ने इस असूल पर दिया है, मगर यह याद रखना ये फतवा वक्ती है और ख़ास शराइत के साथ मशरूत है। देखिए उन्हें शर्तां भी दसिया ना कि ख़ास शराइत के साथ मशरूत है। नाल फिर भी जड़ा ना वक्ती वक्ती फतवा है, यानी कि परमानेंट मुस्तकिल फतवा नहीं है ये। अच्छा, इसे मिर्ज़ा साहब ने की मतलब है इस तहरीर में यह नतीजा निकलता कि मिर्ज़ा साहब ने जी सब तो अवलीयत चीज़ विच रखी है ना, वो ये रखी है ना कि अपनी जान बचाओ, अपनी जान फर्ज है, क्योंकि अगर ਤੁਹਾਡੀ जान जा रही है तो तुसी बचा नहीं रहे तो ये खुदकुशी ते मुतरादफ है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि यह रस्ता है ਇਹਦੇ ਤੇ मौत है, तो दूसरा रास्ता सेफ है, बाहिफाजत ਤੁਹਾਨੂੰ मंजिल तक पहुँचा देगा, लेकिन तुसी स्टिल एक खतरे वाले रस्ते ते चल रहे हो, तो एक किस्म की तुसी अपनी मौत आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो, आप बैल मुझे मार वाली गल कर रहे हो, एक खुदकुशी वाले रस्ते ते चल रहे हो। जे तुसी ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸੀ? हाँ, ये समझ आ गई है। उन्होंने क्या है कि जान बचाने वास्ते तुसी ये पैसा जो मतलब इस तरह की ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਦਤ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।
ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸੂਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਦ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਜ਼ੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਫੈਜ਼ੀ, ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ YouTube ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਚੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਤੀ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਸੂਦ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫਾਲਤੂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਡਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 25% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦਾ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੋ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ? ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਨਾਲ ਚੁਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਬਰਾਈਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ?
ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਆਪੇ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਖੂਹ ਖੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ ਬਸ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਲਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦਣ। ਇਹ ਕੰਚਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਸਨ ਟੋਟਲ, ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਤਨੇ ਦੀ? ਕਿਤਨੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦੌਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਰੇਟ ਕਾਹਦਾ? ਕੰਚਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੰਚਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੰਚਨੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ कैसी है, रंग रूप कैसा ਉਹਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕਿਸ ਗੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਗੀ ਔਰਤ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਵਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨया ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵਾਲ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਨ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾ ਲਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪਾਗਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ,
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। جی جی ਹਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਚਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਜਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਏਜ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜ ਕੱਢੋ। ہے کون سلطان 313 ਇਹ ਕੋਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਜ ਗੱਲ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਕੋ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੇ ਸਿਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है बस दुआएं आपकी। आप कैसे खैरियत से हैं? जी जी। उस दिन आपसे बात हुई थी ना हमारी। हाँ, हमारी आपकी और हमारी हाँ, बात तो हुई थी। आप बता सकते हैं कि आपके ख्याल में मेरे अकायद क्या है, मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ? आप बता सकते हैं या कादियानी हूँ? उससे उस दिन आपसे तफसील से बात नहीं, हुई थी ना। आप माशाल्लाह मुसलमान हैं। थैंक यू। बस यही पूछना था। चलो देखिए अहमद नज़ीर साहब ये पढ़े लिखे शख्स है, ये जज है आज़ाद भाई, सर्विस उनको के। क्या पता है, एक हफ्ता हुआ है, वो तो नहीं उन्होंने आपको मुझसे जानते सवाल हैं जवाब आप क्या किए करते थे, हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे बारे में कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे अकायद मुसलमानों वाले हैं, और उन्होंने कहा था कि मैंने जो उनको जवाब दिए हैं वो मेरे जवाब से मुतमिन हैं। नहीं अबू बकर जी, अबू बकर बी जी, अबू बकर बड़ा जी, अबू बकर बड़ा जी, ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਥੋੜੇ 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਬੂ ਤੂੰ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਵੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਲ ਮੁਮੀਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जी सुल्तान साहब आप कोई बात करें ना। जी, आपका एक ही जवाब मुझे पसंद आया कि मैंने बोला कि जो दावाजात मिर्जा कादियानी ने किए हैं, अगर वो दावाजात वो खुलफाई राशिदीन के सामने करते तो आपके ख्याल में उसको क्या सजा वो देते? तो आपने कहा कि वो उसकी गर्दन उड़ाते। ये काफी है। तो फिर ये जो हमारे मसलकों के बंदे हैं ये क्यों नहीं मानते? ये क्यों जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं? ये क्यों इस तरह नहीं, की आपने कोशिश करते हैं? अब जब एक दफा बातचीत हो तो एक चीज में यहाँ पर ना मुझे आप माफ कीजिएगा, ये पाकिस्तानी लोगों का टेम्परामेंट मैंने कुछ और देखा, कोई मिजाज कुछ और देखा यार। हाँ ये ये बिल्कुल आपस हमारे जो में पाकिस्तानी लोग हैं ना इनका टेम्परामेंट बहुत ख़राब हो जाता है। पल में कुछ होता है, पल में तोला, पल में माशा। ये बदलते मजाज के जो है ना लोग हैं। वो कहते हैं ना कि एक वो बंदा था तो उसको पजामा पजामा नहीं होता था, वो नंगा घूमता था। अच्छा। तो अल्लाह ताला से दुआ की, ये सुने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरी गुर्बत पे ये कर। तो अल्लाह ताला खुश हुआ तो उसने फरिश्ते बोले, कहा कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे हैं, ये तो ऐसे ही कहानी बनाई है। तो बोलो क्या है, कितने कमरे? कहा मेरे कमरे रहने दो, ये गांव वालों ने जिन्होंने ताने दिए हैं उनके सारे पजामे छीनो। यही हाल है पाकिस्तानियों का। हाँ हमारे पाकिस्तानियों का बिल्कुल ऐसा ही हाल है। ये दूसरों
ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ये ਸਾਹਿਬ कौन ਕੋਲੇ सा बोल रहे हैं? ये ਆਹੋ कौन सा बोल रहे हैं? ये कौन सा बोल रहे हैं? नहीं, ये कौन सा बोल रहे हैं? अबू बकर? नहीं, ये ह्यूमैनिटी बोल रहा है, ये थोड़ा सा पागल सा है, इसकी बात का वाइना करना ये। अबू बकर साहब, नहीं अबू बकर साहब, मुझे आप पहले पहले मुझे आप बोलिए ना, मुसलमान किसको कहते हैं? शुरू से ਹਾਂ खेलते ਦੱਸੋ ਹਾਂ शुरू से खेलते ਉਹ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੁਸਲमान सुल्तान साहब अभी गूगल करेगा उधर उर्दू। ट्रू मुस्लिम को ना कहते ना हैं ना, भाई कभी आपको मेरा हुसैनी नाम साहब ने पता करना ना। जो सुल्तान भाई जो आपको हुसैनी साहब ने एक चीज का बोला था कि वो मुझे पढ़ दे पेज अबू बकर साहब बात कीजिए। आप आपको मेरा तारुफ नहीं है। मैंने कहा आपको मेरा तारुफ नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, आपको मेरा तारुफ नहीं है। हाँ जी, मैं पिछले 5 सालों से यूट्यूब में हूँ और रिनाउंड यूट्यूबर हूँ। तो आप तो आप कौन होते हैं ये पूछने जरा जी, मिर्जा कादियानी के बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन? आप हेडमास्टर है इधर? तो तब आपकी पैदाइश ही नहीं हुई थी जब से मैं खत्मी नबूवत पे काम कर रहा हूँ। आ, 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 अबू आप पहले बकर भाई तारुफ तुसी आपका हुण आपकी सांभ लियो तालीम मैं कितनी ना है? मीटिंग ते आ आधा घंटा वास्ते तो आपको बताइए ना मुझे कि आपकी तालीम कितनी है, आपने क्या पढ़ा है? खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पता होगा ना, कलिमा का पता होगा, जो मैंने पढ़ा है ना, जो मैंने पढ़ा है ना, जैसे मैंने पढ़ा है, तो उस भी आपको नहीं पता है। पता है? बात करते हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। आपको पता ही नहीं होगा अपने मजहब के बारे में, अपने दीन के बारे में, और मजहब और अकायद के बारे में क्या, ईमानियत के बारे में क्या पता है। आपको तो नबूवत का भी नहीं पता होगा। किसको? वो कौन है? मैं जानता ही नहीं कौन है वो बंदा। आपका रिश्तेदार है ना? वो अबू बकर का इमाम महदी है। आप तारुफ दो ना। आप मिर्जा, कितने मिर्जा दुनिया में होंगे? हजारों होंगे ना, लाखों होंगे। जब आपने मुझे जब आपने अरे सुनिए ना मेरी, जब आपने मुझे इम्तियाज भाई के साथ देखा है, अदनान भाई के साथ, अरे भाई झूठ में नहीं अरे भाई ऐसे, ओ भाई पहले बात सुनो, तमीज से बात करो, पहले बात सुनो। आपने अगर इम्तियाज भाई के साथ मुझे देखा है, अरे भाई आपने आपने देखो, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। आप सुनो मेरे भाई, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। जब आपने मुझे इम्तियाज भाई के साथ देखा, अदनान भाई के साथ, हाफिज
जुबैर साहब के साथ देखा, तो हमको समझ लेना चाहिए था। आपको आपके आपके आमिर हक साहब भी जानते हैं, आपके जिया अमीनी साहब भी जानते हैं, आपके मुबशर साहब भी जानते हैं। तो मुझे ये, अरे मुझे क्या, तो मुझे ये जरूरी है कि आप, अरे सुनो ना भाई, देखिए अबू बकर साहब, ये जरूरी है कि आप मुझे जाने और मैं आपको जानूं। किस पे? आपने यहाँ मेरे लेक्चर सुने? मैंने बोला आपने यहाँ मेरे लेक्चर सुने? आप क्या करने आए? ये मैंने बोला कि आप मुझे तारुफ कराओ ना, किस कादियानी को, वो कौन था, किधर का रहने वाला था, क्या? मैं नहीं जानता। मैं एक गुलाम, मैं गुलाम सुंदी को जानता हूँ। वो झूठा भाई तू है भाई, कौन है भाई आप? भाई मैं कहता मैं गुलाम सिंधी को जानता हूँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इसमें ना करें सुल्तान साहब, ना करें आप। वो गीले तीतर पाकिस्तानी है, हम नहीं है। ओ तू होगा गीला तीतर, तू गीला तीतर होगा। Shut up, you son of a bitch, you motherfucker, idiot, nonsense. तोते का बच्चा तू है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मादर चौथ का बच्चा, माँ की चौथ तेरी, माँ की चौथ दल्ली का बच्चा। सुल्तान भाई आप उतर जाए, ये पाकिस्तानी हमारे गाली बात है, ये सिर्फ गाली देते हैं, आप उतर जाओ भाई, आप इज्जतदार लोग हो। ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा, ये मुसलमान भाई है, कश्मीर से है ये। आपने देखे उसके साथ क्या रवैया अख्तियार किया भैया, अब उसके सामने कुछ बन नहीं पड़ा, उसके सामने आप मुतालबा नहीं कर पाए तो उस बेचारे को गाली दे रहे हो। वो पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान है, गाल सुने। हेलो, वो ज्यादती कर रहा है ये गीले आपका बंदा। तीतर गालियां किसने दी हैं? वो खिला है, गालियां अबू बकर ने कोई गाली नहीं दी है, इसने चुप गाली करो दी है ने उसको। गाली दी है। चुप करो एक मिनट। तू ਉਹਨਾਂ ਦਾ मुसद्दक थे, वो तेरे मुसद्दक ने। सुल्तान साहब माइक मैंने आपका म्यूट किया, अब खोलें जरा माइक। क्या तारुफ है जनाब का? मुझसे पूछना है तो पूछ ले। आमर मेरा नाम है, गुजरात। वजीर साहब आपसे बात हुई है मेरी, आपसे बात हुई है मैं आपकी स्ट्रीम पे, आप याद कीजिए। कब हुई है? कितना अर्सा पहले? यही कोई 2-4 दिन पहले मैंने आपके 5 दिन हुए होंगे या 6 दिन हुए होंगे, आपसे बात की है मैंने। मुझे याद हर एक आपको मैंने बोला था मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ दिया था, मैं कश्मीर से हूँ। इसी आईडी से बात याद हुई? अगर, हाँ जी हाँ, द डिबेट 313। हाँ, डिबेट 1313 थी वो, जी और जी आईडी जी थी ना? जी, वो तो और आईडी यही आईडी थी, इसको चेंज किया, वो उसका नाम ही नहीं आ रहा था। अच्छा, चेंज किया। अच्छा ठीक है, हुई होगी बात, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल एकदम से हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होकर बात करें और बताएं कि आप टिकटॉक पे कब से आए हैं, कितना अरसा हुआ है? कितने दिन? 6 days, 6 दिन 6-7 दिन। अभी आप कश्मीर में हैं कि बाहर हैं? मैं कश्मीर में हूँ। यानी मकबूजा कश्मीर में या आज़ाद कश्मीर में? इंडिया वाले कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में। जम्मू में, श्रीनगर में, किस इलाके में? श्रीनगर में। श्रीनगर में ये जो कहते हैं मल्ला खान यार है वहाँ पे? जी हाँ। गए हैं कभी आप वहाँ? हाँ, हजारों दफा गया हूँ मैं। वो जो कब्र
कहते हैं कि वो यूज़े आसिफ की कब्र है, उसकी क्या कहानी है? उसकी हम मैं और बशीर साहब जर्मनी के हैं और इम्तियाज भाई है, हम उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इसको क्या पता है बेचारे को। वो ठीक है, आप दूसरों पर तंज ना करें मेहरबानी। एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल रहे हैं, कब्र की वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और सब कुछ उसके बारे में हम एक यूँ समझिए कि एक मुतदल अब अबू बकर मीर भाई, चलो 1 मिनट बात कर लेने मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर जो मिर्जा साहब का दावा है कि वो कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की है, इसके बारे में वहां श्रीनगर के नहीं लोग नहीं 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 देखिए, श्रीनगर के लोग जो है ना, हम लोग बड़े वो ना, जिसको आप कहते हैं ना कि बुजुर्ग को मानने वाले हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ पर अंग्रेजों का भी राज रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का राज रहा है। यहाँ पर बहुत सारे टीम्स आए जिन्होंने उस कब्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली है, आर्कियोलॉजिकल और कार्बन डेटिंग हुई है। सबसे पहले जब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, यहाँ पर जो पहला मुसलमान आया वो बुलबुल शाह है, बुलबुल शाह, हजरत बुलबुल शाह। फिर उसके बाद यहाँ पर हजरत शाही हमदान आए, हजरत मीर अली शाह हमदान साहब आए। तो उन्होंने यहाँ पर बुनियादें रखी है इस्लाम की और उन्होंने तालीमात यहाँ दी। यहाँ पर जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे जो मूर्तियां बनाते थे, वो उनके पास गए, उन्होंने बोले ये इसके साथ रिलेटेड है, कब्र के साथ रिलेटेड है स्टोरी। तो उन्होंने उनको बोला कि हम तो बेकार हो गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको उसके मुतबादिल दूसरा काम दूंगा। यहाँ कश्मीर में बहुत पुराने जमाने से, मतलब अब तो रुक गया है, एक मखसूस कब्र होती है पत्थर की बनी हुई। तो वही कब्र उसी शेप में इस कब्र पर है। गोया कि अगर हम इसकी एज निकालेंगे तो ये 700 साल तक इसका मयार है, मुद्दत है इसकी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बड़ी स्ट्रांग है। आज तक मैंने एक भी क्रिश्चियन को वहां जाते हुए नहीं देखा। अगर ऐसी कोई बात होती तो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च तो कश्मीर में होता ना। उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, तो वो टाइम और ये टाइम जो बतला रहा है वो उससे मैच नहीं करता है। दैट वो कब्र बहुत यंग है उससे। ये कहते हैं 2000 साल पुरानी कब्र है। नहीं जी, नहीं, यहाँ 2000 साल यहाँ 2000 साल पहले तो बुद्धिस्ट थे, फिर फिर ब्राह्मण थे। जब मुस्लिम लोगों ने ये जनाब अली भारत पे जब उन्होंने हुकूमत शुरू की, तो एक बड़ा चंक का ब्राह्मण का जो है ना वो कश्मीर आया है। तो उन्होंने कन्वर्ट किया है यहाँ के बुद्धिस्टों को एज कश्मीरी ब्राह्मण। तो यहाँ पर जो इस्लाम जो आया है वो 800 साल हुए हैं, 750 साल। ये जो कब्र बनी है, ये जिस स्टाइल की ये कब्र है, ये तो वही कब्र है जिस तरह से आज से 30 साल पहले लोग यहाँ कश्मीर के लोग इस्तेमाल करते हैं। और हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह की जो दी हुई कब्र, वो डिजाइन है वही है। तो ये उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि जब ये बंदा फोत हुआ है, तब वो कारीगर जो ब्राह्मण लोग थे, जो मूर्तियां बनाते थे, उनसे ली हुई कब्र को उधर लगाया गया। नहीं, ये जो बुलबुल ये बुलबुल शाह और शाह हमदान के बारे में आप बता रहे हैं, ये किस सदी में आए हैं यहाँ पर और कहाँ से आए हैं? ये तो यहाँ से आए ना, ये दोनों सादात थे। ये तो हमारे आए हैं शाही हमदान शरीफ से आए हैं। हमदान नहीं, उन दिनों जो ईरान जो था ना, वो उधर हमदान का एक एरिया हुआ करता था, हमदान। जैसे कि वो एक हिस्ट्री भी है ना
हमदान के नाम से एक हिस्ट्री है ना, वो एक एरिया पड़ता था बिटवीन इराक एंड ईरान, और उसको हमदान कहते थे। अच्छा, नहीं चलें, वो तो ये नहीं कि जरूरी कि ये मुसलमान जब से आए हैं ये कब्र तब से हो। ना कब्रों ना, का डिजाइन जो कब्र का है ना, आप नहीं समझे मेरी बात। पहले तो यहाँ हिंदू लोग थे, वो तो जलाते थे, यहाँ दफनाने का कोई रिवाज ही नहीं था। अगर मिर्जा ये जो है सुन्नी, अगर इसकी बात को हम लेते हैं, तो अगर कोई बंदा उधर होता तो यहाँ रिवाज ही नहीं था कब्र का, कोई जानता ही नहीं था लोगों को दफनाना है। ये कैसे पॉसिबल है? आप नहीं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया हूँ। कब्र की डिजाइन से आपका मतलब जब क्या है कहने 100%, हाँ, जब 100% लोग यहाँ ब्राह्मण थे और उससे पहले बुद्धिस्ट थे, तो कब्र का कंसेप्ट यहाँ था ही नहीं। अगर 2000 साल की बात है तो फिर कब्र का कंसेप्ट यहाँ कैसे आ गया? कब्र का कंसेप्ट तो यहाँ 750 साल से है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कब्र की डिजाइन का आपने जिक्र किया उससे क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि जो वो कब्र जिस बनाई गई है, वो आफ्टर द पीरियड ऑफ हजरत शाही हमदान है। यानी उस जमाने में मज़ा- कब्रें किस तरह इसको की बना? कश्मीर में हम इसको हम मजार बल कहते हैं। मैं आपको पिक्चर भेजूंगा। हम्म, वो पत्थर की होती है, वो खास तौर पर ये है कि अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो उसमें निकलेगा। आप निकालिए ओल्ड ग्रेव्स, ये ना ग्रेव्स, या ये ना कश्मीरी ग्रेवयार्ड आप निकालिए ना, आज के दौर का नहीं, पुराना आप निकालिए ओल्ड, तो आपको ये मुस्लिम ग्रेवयार्ड निकालिए आप, तो आपको वो कब्रें मिलेगी उसी अंदाज पे बनी है। गोया कि एक चीज है कि पहले यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कब्र का। बुद्धिस्टों में कोई कब्र नहीं होती है, ब्राह्मणों में कोई कब्र नहीं होती है। फिर अगर कब्र का कॉन्सेप्ट हम लेंगे तो ये तो तब आया ना जब मुसलमान आए यहाँ। नहीं वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो श्रीनगर है इसका हाँ, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या जो इसकी पूरी हिस्ट्री है हाँ, वो आपके पास है कहीं से अवेलेबल? मैं आपको वो दिलाऊंगा पूरा। इसी चीज का आप दिखा रहे हैं ना। असल चीज तो यही है ना कि श्रीनगर शहर जो था वो कब आबाद इसकी हुआ है इसकी और इस, श्रीनगर तो बहुत पुराना है ना, कि दुनिया की पहली हिस्ट्री यहीं लिखी गई ना, राज तरंगनी। नहीं मैं दुनिया की पहली आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, ये बहुत पुरानी है। अगर बहुत पुरानी है तो जो बुद्धिस्ट आप बता रहे हैं और ब्राह्मण्स बता रहे हैं ये तो कल की बात है। इनसे भी तो पहले यहाँ पर कौमें होंगी ना? ये कोई मिली जुली है ये वो बुद्धिस्ट एंड वहां से हिस्ट्री है। लेकिन इट्स एन ओल्ड, वन ऑफ द ओल्ड, यू कैन से सर, ये ना जो जिसे हम कहते हैं ना आबादी जिसे हम कहते हैं, यहाँ के लोग रहते थे उन दिनों की। क्या पहली जो हिस्ट्री है यहाँ पर, वो है राज तरंगनी। वो बतलाती है बुद्धिस्टों की पीरियड से वो शुरू होती है। और उसके बाद दूसरी यहाँ पर हिस्ट्री आई है इसकी, बुद्धिस्ट लॉरेंस किस की। किस सदी के हैं? बुद्धिस्ट किस सदी के हैं? बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट तो बहुत पुराने हैं ना। दे आर द ओल्डेस्ट देन द हिंदू। नहीं वो मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ कि वो जो आप मौजूदा एक्सक्लेवेशन आप कर रहे हो ना, जो आपने पढ़ा है वहां पर, तो जो कुछ भी निकलता है ना, तो वो बुद्धिस्टों का ही निकलता है सब कुछ। और यहाँ का जो रूट जो होता था, सिल्क रूट यूज होता था। मतलब कनेक्टिविटी यहाँ से भी थी ना, वहाँ चाइना भी लोग जाते थे यहाँ से वाया आजाद कश्मीर जो है, सिल्क रोड जो है, उससे भी जो सिल्क रूट है वो सेंट्रल एशिया तक कनेक्टेड होता था ना, अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ यही वो एक रोड था ना। फिर उसी रोड को थोड़ा कन्वर्ट किया, मुगल रोड बनाया गया जो कनेक्ट करता था। फिर उन दिनों का जो मुगल एम्पायर यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पर मतलब बागात बनाए, कुछ किले भी बनाए, तो उस दौर में वो भी आता है। नहीं उन्होंने मुगल रोड उसी को कर। मुगलों का तो वो नहीं है ग्रैंड ट्रंक रोड, वो जो जीटी रोड जिसको बोलते हैं? ना असल मुगल रोड तो वो है ना, विच आपको पता, आपको नहीं पता होगा। श्रीनगर से शुपया जब जाते हैं ना हम,
تو شپیا ایک ایریا ہے، وہ پھر کنیکٹ کرتا ہے پونچھ ایریا سے. پونچھ ایریا آپ کا وہاں پڑتا ہے یہ نا جو آپ کا آزاد کشمیر یہ نا یہ کیا چکوٹی وکوٹی سے وہاں سے وہ ملتا ہے. تو یہ جو روٹ جو ہے اس کو پہلے سلک روٹ کہا کرتے تھے، پھر بعد میں اسی روٹ کو مغل روٹ کنورٹ کیا. ابھی بھی اس کا نام مغل روڈ ہے. اچھا جو شاہراہ ہے نیشنل ہائی وے ہے اس کا نام ابھی بھی مغل روڈ ہے. آپ کہہ رہے تھے کرسچن کمیونٹی بھی یہاں پر سٹرانگ ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جو آپ دیکھیں گے یہاں کرسچن کمیونٹی بھی بڑی اچھی خاصی تعداد ہے. ان کے مشنری سکولز ہیں، ہاسپٹلز رہے ہیں، یہ کب ان کا بھی بڑا. ہاں یہ کب سے ہوئے ہیں یہاں پر؟ جب انگریزوں کا دور تھا. اچھا یہ برطانوی دور میں کنورٹڈ لوگ ہیں سارے؟ یو کین کہیے آپ 98% کنورٹڈ، 2% وہ جو سادات آئے تھے. تو کبھی انہوں نے بھی نہیں اس کے بارے میں جستجو کی کہ بھئی مرزا قادیانی نے یہ پھڑ ماری ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو ہم اس پہ ریسرچ کریں؟ انہوں نے انگریزوں نے کی ہے اس پہ آرکیولوجیکل وہ ریسرچ. انہیں کاربن ڈیٹنگ بھی کی کہ they found that this is newest grave and وہ اس کا وہ ڈراپ کیا گیا. اور اگر یہ کسی بھی معاملے میں یہ ریلیٹ کرتی نا اس چیز کو تو یہاں ہمارا جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ اس کو لیتا نا، آثار قدیمہ اس کو اپنے تحویل میں لیتا. آثار قدیمہ نے بھی اس کو اپنے تحویل میں لیا ہے. they have also declined that this یہ جو بات ہے یہ کوئی چیز اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں پر جو بھی آثار ہے، جو بھی پرانے عمارتیں ہیں ان کو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اپنے تحویل میں لیا. دین پارٹ اینڈ پارسل آف. تو وہاں پر قادیانی بھی ہیں سری نگر کے ایریا میں کوئی؟ سری نگر میں تو نہیں ہے، تو کلگام ایریا میں اور شپیا ایریا میں ہے. تھوڑی تعداد میں ہوں گے معمولی. یہ آپ سمجھیے 5-6 ہزار. اچھا 5-6 ہزار لوگ. وہ دور ہے اس سے؟ سری نگر سے کتنا دور ہے؟ سری نگر سے وہ کوئی 80 کلومیٹرز اینڈ 70 کلومیٹرز اتنا دور ہوگا. دے آر نیگلیجبل ہیئر. وہ ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے سوسائٹی میں، کچھ نہیں ہے مطلب. اینڈ یہاں پر پرنسپلز وہی ہے کہ ان کو اپنے گریو یارڈ میں دفن نہیں کیا جاتا ہے. ان کو اپنے گریو یارڈ ہیں تو وہ پوری دنیا میں نیگلیجبل ہیں، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی نہیں آ کے اس پر اصرار کیا کہ ہمارے مرزا نے یہ بات کہی ہے اور اس پہ ہماری یہ. یہاں پر ہمارے جو کشمیر کا جو ماحول ہے نا یہ کچھ ذرا چارجڈ ماحول ہے مذہب کے بارے میں. تو یہاں پر تو 2 منٹ میں صفایا ہوگا. اچھا کشمیر میں چارج ہیں لوگ مسلمان؟ ہاں اسلام کے بارے میں بڑے وہ چارجڈ ہے اور بڑے وہ نا سیدھے سادھے اسٹرکٹ فالوورز ہیں، لیکن وہ کسی چیز کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اچھی بات ہے. ٹوٹل پاپولیشن اس کی کتنی ہے سری نگر کی؟ سری نگر کی ہوگی جی کشمیر ویلی کی ہم نے بات کریں گے. کشمیر ویلی کی ہوگی کوئی راؤنڈ اباؤٹ 55 lakhs. سری نگر سٹی کی ہوگی کوئی 20 لاکھ کے قریب. سری نگر کی؟ ہاں جی. تو پاپولیشن ساری مسلم ہے؟ کوئی ہے اس میں 1% 2% دوسرے نان مسلم؟ اس وقت سکھ کمیونٹی ہے اور جو پنڈت کمیونٹی ہے تو وہ تو باغی ہے یہاں سے. تو یہ سمجھیے کہ اس وقت 95% مسلم. سکھ کافی ہیں سکھ وہاں پہ؟ سکھوں کی بھی کوئی ایسی کوئی تعداد یہی سمجھیے کوئی 20-30 ہزار. بدھسٹوں کی بھی ہے. بدھسٹ ابھی بھی ہیں وہاں پر؟ ہمارا ہے نا لداخ کا ایریا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر بھی ہے، سری نگر میں بھی ہے. اچھا لداخ آپ کے ساتھ ہے یا جڑا ہوا کہ دور ہے آپ سے؟ نہیں وہ تو دور ہے لیکن ہے ہمارا ہی پارٹ ہے نا.
तो वो चाइना से ये नहीं मिला हुआ है? और चाइना से तो मिला है ना, करगिल भी है उसके साथ, वो पाकिस्तान के साथ मिलता है और चाइना के साथ भी। तो लद्दाख जो है वो पूरा चाइना के बॉर्डर से मिलता है। तो वहां पर ज्यादा बुद्धिस्ट है? मिक्स्ड है, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन। आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कितनी उम्र है आपकी सुल्तान साहब? मेरी कोई 57 है 57? जी। मुझसे फिर 2 साल अब ज्यादा, 1 साल ज्यादा है। 70 की आप पैदाइश है? 69 की? 69। 69 की। तो आप बाहर नहीं निकले, हमेशा से वहीं पर थे, कश्मीर में ही रहे? हाँ जी, कश्मीर में, हम पूछते ही नहीं कश्मीर में। ओए म्यूट कर लो इन्हां नू। इतना शोर कर रहा है ये ट्रू मुस्लिम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कोई जॉब वगैरह करते थे आप जवानी में, बाहर रहे हैं या हमेशा से वहीं पर हैं? मैं अभी भी जॉब करता हूँ। क्या My profession है जज। क्या प्रोफेशन है? I am by profession a district and session judge। आवाज सही नहीं आ रही। मैं बाय प्रोफेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जी जी जी। हाजिर सर्विस। हाँ जी हाँ, अभी 3 साल है माशाल्लाह। तो आप टिकटॉक कैसे यूज कर लेते हैं? कोई लिबर्टी नहीं है ना, पर्सनल टाइम में हम यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट स्पीक अबाउट मुल्क के जो हमारा जो है सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, फॉरेन पॉलिसीज के लिए नहीं बोल सकते। रेस्ट वी हैव अ लिबर्टी, वी कैन हैव डिस्कशन। हम तो ये जो प्रीच कानून भी करते हैं, डिस्कशन डिबेट लॉ भी होता है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे मुख्तलिफ अक़साम के जो कानून है या जो प्रोटेक्शन है वहाँ पर वो भी डिस्कशन होते हैं। लॉयर्स आते हैं, जजेस आते हैं, वो डिस्कस देयर। तो आप पहले वकील थे? जी जी। तो कितना अरसा हुआ यहाँ पर इसमें आपको जज बने हुए? या 25 years। 25 ईयर से ये काम कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बने हुए कितना अरसा हुआ है? मुझे करीबन 6 साल हुए हैं। वहां पर जराइम की शरह कितनी है? कम है। हमारे तो पाकिस्तान में तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है उसके पास तो मेरे ख्याल है सर खुजलने के लिए भी टाइम नहीं होता। होगा नहीं मिलेगी आपका। मैं आप फिर बुरा मानते हैं ना, आपकी बात हकीकत में मानी जाए तो हमारे पास यहाँ बहुत फैसिलिटीज होती हैं। नहीं, फैसिलिटीज और चीज है और नक्शे अमन का ना होना और चीज है। अगर लोग वहां पर पुरअमन है या उसमें जराइम की शरह नहीं है तो वो एक और बात है। उसकी वजह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जो हमारे पास यहाँ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। और जो हमारे काम होते हैं अपीलेट्स होते हैं ज़्यादा, अपीलेट एंड ट्रायल ऑफ 302 एंड जो भी कुछ और सीरियस इश्यूज होते हैं उसमें। तो यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 होते हैं। श्रीनगर में करीबन आप अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तादाद लोगे तो कोई 25 के करीब हो। तो और आजकल हमारी दिवालियों की छुट्टियां चल रही है। हाँ, कल रात को हमारे घर के साथ भी, वो इटली में मैं होता हूँ, तो दाएं बाएं रहते हैं सिख लोग। तो वो कल रात को ना शाम के बाद जब मैं घर गया हूँ तो बड़े जोरदार धमाके उन्होंने शुरू कर दिए। तो मुझे समझ आ गई कि आज इनकी कोई दिवाली वगैरह। पहले भी ऐसे होता है, जब दिवाली होती है तो उनके बच्चे पटाखे चलाते हैं। ये एक दिन होता है कि ज्यादा दिनों का ये फंक्शन होता है इनका? ये हमारा यहाँ तो बहुत दिन चलता है ना, 2-3 दिन चलता है। तो उस वजह से 2 दिन छुट्टियां होती है, 2-3 दिन छुट्टियां होती है ऑलमोस्ट। अच्छा, आपके पास एज ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो केसेस होते हैं वो फौजदारी होते हैं या दीवानी मुकदमात होते हैं? सब होते हैं। सब आते हैं। सिविल क्रिमिनल एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सर्विस मैटर।
अच्छा, ये जो केसेस आते हैं टेररिज्म के, जिसको उन्होंने टेररिज्म का नाम दिया हुआ है, तो उसको भी मैं आप, नहीं बोल सकता ना, इस पे नहीं बोल सकता। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको टैकल करना पड़ता है या वो उनके अलग केसेस टैकल करते हैं? नहीं, हम ही हमारे पास ही आते हैं। आपके पास ही होते हैं? अच्छा अच्छा। अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो उसका केस भी आपके पास होता है? हाँ जी, आते हैं ना। आजकल वैसे हालात कैसे जा रहे हैं? अभी हालात हमारे नॉर्मल जा रहे हैं। अभी ये समझ लीजिए कि आप बस खामोशी है। और ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो उसने थोड़ा बिजनेस को, यहाँ का टूरिज्म को हिट किया है, तो उससे बहुत सारा नुकसान हुआ यहाँ। नहीं, पहलगाम के इंसिडेंट के बाद भी बहुत कुछ हुआ ना, वो तो हुआ, उसके बाद जो शरीफ शहरियों से हुआ वो भी तो हमें पता है। नहीं, मैं कहता हूँ कि जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, यहाँ के लोगों का टूरिज्म जो है हमारी बिगेस्ट इंडस्ट्री है। राजा जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जज साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? बाकी दुआएं आपकी। अमर भाई, वैसे सुनने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए भी, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होता है ना, ये एपीलेंट कोर्ट भी होता है। जो मजिस्ट्रेट्स के फैसले होते हैं ना, वो चैलेंज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में ही होते हैं। सो वो वेरिड केसेस होते हैं, हर किस्म का केस होता है, दोनों क्रिमिनल और सिविल। जुडिशरी में अभी हर एक स्टेट में 3 टायर की जुडिशरी होती है। नंबर 1 होती है जो मैजिस्ट्रेट लेवल की होती है। फिर फर्स्ट सेकंड टायर जो जुडिशरी का होता है हायरार्की, वो होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। फिर थर्ड जो होता है वो होता है हाई कोर्ट। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। जी जी। नहीं, मैं ये असल में समझा रहा था कि जो आपकी है ना डेजिग्नेशन, इसमें ये अपीलेंट कोर्ट है, जो नीचे से अपीलेट फैसले होकर आपके पास और अपीलें आती हैं। और इट डिफर्स द पोस्टिंग्स आल्सो। आप जो आपके अंदर बैंक मजिस्ट्रेट जितने हैं ना, वो सारे उनका आप ही इंचार्ज होंगे। उनकी अपीलें पहले प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाती है के पास जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी। और वो सुपरवाइज भी उन लोगों को आप ही करते हैं? हाँ, उनका नहीं, वो सुपरवाइज हाई कोर्ट करती है। हमारे नहीं, पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अच्छा, वो नहीं आपके यहाँ, ठीक है। वो हाई कोर्ट में सीनियरिटी की बेस पर तो आप है ना उनसे सीनियर हाँ, वो तो है डिस्ट्रिक्ट ये के ना, अंदर। इसमें भी है ना, जिसको आप कहते हैं ना कि हायरार्की में भी है और साथ में अपीलेट अथॉरिटी भी है। लेकिन जो हाई कोर्ट यहाँ का है ना, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। आपको तो पता ही है जावेद साहब। जी पहले जी। ये कौन बात कर रहे हैं? ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में हाई कोर्ट में सारे पावर्स, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आपके पास रहता है। ठीक है। हमारा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक। अच्छा, ये जम्मू आपसे कितनी दूर है? जम्मू 225 किलोमीटर। मेरा ख्याल है कि वो जो अब्दुल्ला कश्मीरी था वो जम्मू का था या उस एरिया का नहीं, था? कश्मीर का। कश्मीर का था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अब्दुल्ला कश्मीरी, वो उसी कुलगाम साइड का था। जिसको मिर्जा कादियानी ने भेजा था तहकीक करने के लिए श्रीनगर में। हाँ जी, वही कुलगाम साइड का था। हाँ, वो जो बाद में वो बाही बन गया, बिहाई उसको भी छोड़ा। फिर उसको भी छोड़ा, फिर शायद लाहौरियों के साथ भी रहा है। तो उसने उसको भी छोड़ा और उसने उसको इस बारे में बोला कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मजार बल। इस कब्र को बोलते हैं हम मजार बल। अच्छा। मजार कहते हैं जहाँ पर ना दफन लोग होते हैं, मजार कहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मजार बल। हम खाने इसको मजार बल की जगह का नाम दिया गया है। लेकिन उसने तो, अब्दुल्ला ने तो, वैसे सच्ची बात यही है कि उसने कश्मीरियों के बारे में, श्रीनगर के लोगों के बारे में तो वही बात पेश की जो वहां थी, लेकिन खुद वो इसको ईसा अलैहिस्सलाम की ही कब्र बनाता रहा है। उसने उसको बोला कि वहां एक गुमनाम कब्र है, तो आप क्लेम ठोक दो।
تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کی عادت تھی کلیم ٹھوکنا، جس طرح نور الدین نے کہا تھا کہ بھائی اب موقع ہے تو نبوت کا دعویٰ ٹھوک دو، تو وہ تو دوسروں کی بات پہ چلتا تھا نا۔ ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مسیح کا دعویٰ اسی کے کہنے پہ کیا۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نے عبداللہ کشمیری نے اس کو کہا بھی کہ کشمیر کے لوگ ابھی تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جو قبر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے جھوٹ جڑ دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی کشمیر کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مشہور ہے۔ نہ 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 نہ، ایسا کوئی بات نہیں۔ یہاں پر اگر ایسا کوئی ہوتا تو ہمارے پاس اگر اس قسم کی بات ہوتی تو آپ کو پتہ ہی کہ پورا سری نگر جو ہے، ہم تو وہ نا جنہیں آپ کہتے ہو نا عام طور پر بریلوی، اسی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہم تو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، ہم تو درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں، تو وہاں پر اتنا بڑا آستان ہوتا کہ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ہوں ایک نبی کی قبر ہونا ہمارے لیے فخر تھا سر۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، نبی کی قبر ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی قوم زندہ ہو اور قبر ناپید ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ قوم جو نا زیادہ ان چیزوں پہ مطلب عقائد رکھتے ہو۔ ہوں ہمارے یہاں تو آپ یوں کہیے کہ ہم تو اس پہ بہت یہاں پر نا فالوورز ہے، جسے نا آپ اپنی زبان پہ وہ کہتے ہو کہ یہ جی اس ٹائپ کے ہیں۔ وہ تو یہاں پر وہ اسٹرکٹ وہ نہیں ہے، یہاں پر صوفی کلچر رہا ہے، یہاں پر بہت رچ صوفی کلچر رہا ہے، اور اس صوفی کلچر میں بہت بڑے بزرگ یہاں پر آئے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور جو صوفی لٹریچر یہاں کا ہے نا، اس کی آپ کو مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ ہاں جی، صوفی کلچر کو تو آپ کا مودی بھی بہت پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے اسلام اصل میں، بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتے، اپنا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اور صوفی کو نہیں تو وہ تو صوفی کلچر نے تو حضرت صلاح الدین ایوبی میں جو فوج تھی وہ کس نے تھی؟ ہمیشہ صوفی نے تو بچائی ہے نا، عالم تو آپس میں جگڑتے رہے نا۔ نہیں، صلاح الدین ایوبی تو ایک جرنیل تھا، اور جرنیل کے ساتھ جو اس کی جو فوج تھی وہ کس کی تربیت یافتہ تھی؟ نہیں وہ اگر صوفیوں کی تربیت یافتہ ہوتی تو تلواریں لے کر کیوں نکلتی؟ تو کیوں نہیں صوفی نہیں تربیت یہ تلواریں لے کر نکلے؟ اگر صوفی بھی تلوار کی تربیت دے تو مودی کیوں خوش ہو صوفی پر؟ کس صوفی پر؟ آپ جو وہ کبھی کسی دن میں بات کروں گا آپ کو۔ اصل میں آپ عامر بھائی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ صوفیاء کا ایک تو بگڑی موٹرک ہوئی ہے، شکل ہے۔ تو موٹرک کوئی صوفیات کوئی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے، کوئی مجھے بولے گا صوفیات بڑی، اس کو آؤ نا نہیں، بولو صوفی اس نے کو نہیں، کنٹریبیوشن کیا اوینٹی کیا بچہ ہے، اوینٹی بچہ اس کو نہیں یہ پتا۔ آپ کی جو عثمانیہ ہے نا، یہ سلطنت عثمانیہ، اس کی بنیادیں ڈالنے والے کون؟ میں یہ کہنا ہوں کہ دیکھیں نا، ہمارے ایک صوفی تھے بابا فرید، ان کا نام تھا۔ ہاں بابا فرید کی جو بانی ہے وہ سکھوں کے گرنتھ میں، آپ کو پتا ہے؟ ہاں جی ہاں ہے۔ سکھوں کے گرنتھ میں بابا فرید کے کافیاں اور وہ گرنتھ وہ بانی ہے۔ تو جی ہاں اگر بابا فرید نے کوئی ایسی چبھویں بات کی ہوتی، ایسی جو جا کے چبھتی کسی کو تکلیف دیتی، تو گرنتھ والے تو نہ اپنی کتاب میں رکھتے اس کو۔ مثال جناب علی، اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں نا، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے ہے؟ نہیں، کسی عالم کی وجہ سے نہیں۔ ہم تو آپ اللہ کی سنیے نا میری بات، نہیں اللہ کی رحمت ہی ہے نا، بذریعہ کس سے؟ اسباب کون بنے؟ اسباب تو صوفی بنے نا۔ یہ تو ایک کہانی شریف ہے جو ہمیں سنائی جاتی ہے، لیکن نہیں کہانی شریف نہیں، یہ آپ کا جو ہے نا وہ بغض ہے، اور حقیقت سے پردہ کرنا اور آنکھیں چھپانا۔ نہیں سلطان صاحب، داتا ہجویری اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تو وجہ سے ہے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ دو بھائی تھے، حجاج اور وہ دوسرا بھائی۔
उनका दोनों का नहीं सिर्फ मिलता है जी, नहीं मिलता ये मोहम्मद बिन कासिम को तो खुद वहाँ इन्होंने ये वो हिजाज बिन यूसुफ का वो भांजा था, तो उसको तो खुद कत्ल किया है। नहीं, उसने क्या कत्ल किया? कर दिया, कत्ल तो मूसा बिन नसीर को भी कर दिया, इसको भी कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसने काम नहीं कि किया, उससे काम तो उससे उसने कोई किया नहीं ना। फैला, उससे कुछ नहीं फैला। नहीं कश्मीर फैलना, की बात आप कश्मीर की मेरी बात बात, करो, आप हिंदुस्तान की बात करो, आप पाकिस्तान की बात करो, हिस्ट्री को टटोलो जरा। बात तो सुने ना सुल्तान साहब, अगर तारक बिन जियाद या मूसा बिन नसीर या मोहम्मद बिन कासिम जाके एक इलाके को फतह करते हैं, उस इलाके में इस्लामी सल्तनत कायम करते हैं, कहाँ बाकी की उन्होंने, कहाँ की उन्होंने? ये स्पेन में किया तारक बिन जियाद ने, मूसा बिन नसीर ने अफ्रीका तारिक में बिन किया, जियाद में इंडिया की बात कर रहा हूँ ना, मैं इंडिया की बात मोहम्मद कर बिन रहा हूँ। कासिम ने इंडिया में किया। नहीं, वो फिर गए ना, निकले ना, फिर कहाँ रहे? कोई मुसलमान किया, एक को कलमा पढ़वाया? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हुकूमत कायम हो जाती है ना, मजहब फिर अपनी सच्चाई कोई से हुकूमत उसने जनाब अली कोई हुकूमत नहीं की, उसने उसका राजा दायर का वो कत्ल किया और निकल पड़ा। हाँ, ये तुम्हें साबिर रसूल है, कुछ सहाबा भी आए वो हैं। पंजाब में, हाँ पंजाब में है वो ये वो पंजाब में है एक, मैं और मैं आपको वो सहाबी की बात कर रहा हूँ कि यार ये कौन सा बेवकूफ इंसान है इधर। सुल्तान साहब, और सुल्तान वो साहब, पता ये आप नजीर तो साहब जरा सुनो ना, क्लासेस लिया। नजीर साहब, एक पहले एक आप सबसे पहले, आप तो अच्छे डिबेटर है, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, लेकिन कभी कभी क्लासेस भी लिया करो, आप नहीं लोगों को अबू बकर पढ़ाया भाई, तो करो कि उस क्या वक्त है। से जब मैं बोलता हूँ, मैं खाना खा रहा था तो वो आपके साथ कोई झगड़ा मगड़ा हो गया, जब मैं बोलता हूँ तो वो नहीं बोलते, वो खामोशी से सुन रहे थे, बस वैसे ही उन्होंने एक बीच में वो मालिक बिन दिनार की मस्जिद का रेफरेंस दिया है। लेकिन आप तो मिच्योर हैं, आप तो इनसे बड़े हैं ना, अबू बकर भाई तो छोटे भाई हैं हमारे, आपको तो हाइपर नहीं ना होना लेकिन चाहिए, आप मैं जुम्मेदार इनको आदमी पता हैं। नहीं क्या इरिटेशन है, इनको इरिटेशन है मुझसे। नहीं 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 नहीं, कोई ऐसे आपने या तो मुसलमान ये तो भाइयों से ठीक क्या है, इरिटेशन हो सकती है, इस तरह की कोई बात नहीं, ना गलतफहमी पैदा होने दिया करें। कभी कभी बातों के करने में हमारे पास अल्फाज का जो चुनाव होता है वो अच्छा नहीं होता, उससे गड़बड़ हो जाती है। जरूरी नहीं होता कि जो बंदा अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं कर रहा वो बंदा खुद भी बुरा है, ऐसा नहीं होता। कई बार उसके इल्म की कमी की वजह से वो अल्फाज का चुनाव भद्दा सा कर रहा होता है, बंदा वो अच्छा होता है। तो इसलिए ये तो खैर होगी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि अगर कोई कहे कि हिंदुस्तान में इस्लाम सूफिया ने फैलाया या उलमा ने फैलाया, ये कोई झगड़े वाली, सब ने अपना अपना किरदार अदा किया है। आपको लगता है सूफिया की ज्यादा कोशिश है, तो मैं आपसे कोई इस पे इख्तलाफ नहीं करता, उनकी भी कोशिश बहुत अच्छी रही होगी, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया होगा, लेकिन दीन हमेशा अपने दलाइल की बिना पर फैलता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो मिर्जा कादियानी था ना, असल में मिर्जा कादियानी का दावा ये था, यार ये क्यों उठा लेते हो मेंटी, जिनका माइक म्यूट नहीं रह सकता वो इस ब्राड पर क्यों उठा लेते हो बंदे। म्यूट है अभी, वो खान साहब बुजुर्ग आदमी है, नहीं उन्हें पता चला होगा। बुजुर्ग आदमी है तो उनको बताओ ना, दो बंदे बात कर रहे हैं तो जरा इंतजार करें अपनी बारी का। मिर्जा कादियानी का दावा ही ये था कि मैं हूं एक ऐसा सूफी बुजुर्ग, मेरे पास ऐसी करामतें हैं कि जिसने मेरे दीन इस्लाम की सच्चाई के सबूत देखने हो वो आए, मैं उसको सबूत पेश करूंगा, ऐसी करामतें दिखाऊंगा, ऐसे मोजज़े दिखाऊंगा, ऐसे निशानात दिखाऊंगा कि वो देखकर कन्विंस हो जाएगा कि ये दीन सच्चा है। पंडित नजीर लेखराम, साहब, मैं सबसे पहले बोलूं, उसने वहां पर भी दजल किया है। वो कहता है फनाफे रसूल, फनाफे रसूल से पहले होते हैं फनाफी शेख।
फनाफी शेख से जब इंसान वो मरहले तय करता है वो फनाफी रसूल में चला जाता है। फिर जब फनाफी रसूल में तय इंसान वो मकामात उसको वो चीज़ हासिल होती है तो वो मार्फत में चला जाता है, मार्फत से निकलकर वो हकीकत में चला जाता है। तो ये सुभान अल्लाह। खाली फनाफी रसूल की बात करता है। इसको बोलो पहले कि क्या उसने, कोई कहेगा मैं ग्रेजुएट हूँ, उससे हम सवाल करेंगे क्या आपने पहले मैट्रिक पास किया है? अगर उसने मैट्रिक पास किया तो जाहिर सी बात है फिर उसकी ग्रेजुएशन की बात होगी। तो पहला मुकाम जो सूफियात में है वो है फनाफी शेख। जो मैं फनाफी आपकी शेख को ये मैं आप आपकी सुनिए ना मेरी बात बात। से मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूँ, लेकिन ये बात तो करनी थी बाबा गुलाम फरीद ने, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी ना कहा। वो तो शेख बटालवी ना जाते तो वो तो इससे हुस्न ज़न रखे हुए थे कि चलो छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये ईसाइयों से मुकाबला कर रहा है। सूफिया ने ही बताना था ना आगे बढ़कर कि तुम कहाँ से सूफी आ गए हो। पहले फनाफी शेख होता है, फिर फनाफी रसूल होता है। कौन सा तुम्हारा शेख है, कौन सा तुम्हारा पीर है, कौन से बुजुर्ग से तुमने फैज हासिल किया है? ये तो सूफिया ने पूछना था ना। अब मोहम्मद हुसैन बटालवी और तो सबसे बड़ी बात नजीर साहब, सबसे बड़ी आप तो डिबेट करते रहे, और सबसे बड़ी बात होती है सिलसिला। आपका कौन सा सिलसिला है? सिलसिला है कादरी सुल्तान है, भाई वो चिश्ती है, डिबेट करते हैं, सोहरवर्दी है। लेकिन अपने आलमों को भी तो मैंटी बचाना है चुप ना। कर जा मैंटी, क्या मैं कर तेनों हुण जी जी पूछे जी। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। वो ना मैंने कहा अपने नजीर साहब डिबेट करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि भाई कि आपका क्या सिलसिला है। अगर आपका हाँ। सिलसिला कादरी है, नक्शबंदी है, और मैं अबू बकर भाई ना करो यार, खामोश, शुगल ना लाओ, संजीदा गल करो। नहीं वो कहता हूँ मजाकन कि कहते हैं मिर्जा हमने सिलसिला। कादियानी का सिलसिला क्या था? हाँ क्या कुछ वो भी नहीं। कादरी सिलसिले से था? क्या वो सोहरवर्दी से? क्या वो चिश्ती से? क्या वो नक्शबंदी से थे? कुछ भी क्या नहीं वो था। उवैसी थे? मुसलमानों के जो सूफिया के वहां पर सिलसिले थे, उनमें से अगर किसी सिलसिले से इसका ताल्लुक नहीं और ये दावा करता है हिंदुओं के सामने और क्रिश्चियनों के सामने कि मैं तुम्हें इस्लाम की सच्चाई का सबूत पेश करता हूँ, मेरे पास आओ, तो सूफिया को आगे बढ़ के गर्दन दबोचनी चाहिए थी ना, कि पहले अपना सिलसिला बताओ, अपने पीर का, अपने बुजुर्ग का, अपने सिलसिले का नाम बताओ, हमें बताओ कि तुमने ये फैज कहाँ से पाया और कौन सा तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम इस्लाम को बदनाम करने लगे हो। अब मैं उसका एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पंडित लेखराम जो था ना, वो पेशावर में पुलिस में नौकरी करता था। जब इसने इश्तेहार छापा कि भाई आ जाओ मेरे पास कादियान में आके 20 दिन रहो तो मैं सबूत पेश करूंगा, वो पेशावर से चल के कादियान आ गया। खुद इसने लिखा हुआ अपनी किताब फरियाद दर्द में कि वो पेशावर से चलकर कादियान आ गया। अब वो हर रोज पिछले पहर आकर इसका दरवाजा खटखटाता था कादियान में, क्योंकि वहां पर वो हिंदू भी रहते थे, वो मंदिर में उनके साथ रहता था, और उसके साथ आके सवेरे पिछले टाइम दोपहर के बाद गर्मी जब कम होती, इसका दरवाजा खटखटा के कहता था कि दिखाओ भाई अपना कोई करामत दिखाओ, निशान जो तुम कहते थे कि निशान पेश करूंगा, दिखाओ कौन सा निशान है तुम्हारे पास, मैं पेशावर से आया हूं तुम्हारा निशान देखने के लिए। तो ये आगे से वो कुरान कहता है ना, फबोहित अल्लज़ी कफर, उसका मिसदाक बना, हक्का बक्का मुंह उसका देखता रहता था। फिर वो इसका दरवाजा छोड़ के, खुद ये मिर्जा कादियानी ने लिखा हुआ है कि मेरा दरवाजा फिर छोड़ के, यानी मुझे जूत परेड करके फिर वो चला जाता था कादियान के बाजार में। बाजार तो नहीं होता था वहां पर, ये कह लें चौक सा गलियों का दो बना होता था। वहां पर 2-4-10 बंदे इकट्ठे कर लिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी भौंकता था और कहता था कि मुसलमानों का यही दीन है कुल, ना इनके पैगंबर के पास कोई बात है, ना इनके सूफी ये मौलवियों के पास कोई, ये कहता है मौलवी ये कादर क्या नाम है इसका, गुलाम अहमद कादियानी कहता है मैं निशान दिखाऊंगा, मैं पेशावर से आया, इसके पास तो छनकना भी नहीं है। तो इसने जो इस्लाम को बदनाम किया गैर मुस्लिमों के आगे, सूफिया का काम था ना इससे पूछते कि तुम ये जो दावा करते हो कि मैं निशान पेश कर सकता हूं, मैं फनाफी रसूल हूं, पहले फनाफी शेख बताओ तुम कौन से शेख के पैरोकार हो और किस सिलसिले से तुम्हारा ताल्लुक है। लेकिन सूफिया ने तो कुछ किया नहीं, आगे बढ़कर गर्दन तो सवाए पीर मेर अली शाह के माजरत के साथ, बाकी तो सब उलमा थे जिन्होंने इसकी गर्दन दबोची है। सूफिया ने तो नजरअंदाज किया, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले, उनका तो खत डाल के फिरता था, उनकी तो वो मोहरे तस्दीक लेके घूमता था। एक किताब लिखी जामे आतम, उसमें उनका बाद में क्या नाम है उसका, जमीमा जामे आतम, उसमें
ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाला के 2 खतूत फारसी में लिखे हुए वो शाया कर दिए कि देखो ये सूफी साहब तो मेरी तस्दीक कर रहे हैं कि मैं सही इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। फिर तो वो मोहम्मद हुसैन बटालवी जो एक अहल हदीस आलम दीन थे, वो दौड़े वहां से। पहले तो मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी गए ख्वाजा साहब को समझाने बहावलपुर कि ख्वाजा साहब आपको नहीं पता ये तो मक्कार और फरेबी आदमी है, आपने उसको खत लिखा। तो ख्वाजा साहब ने कोई खास बात सुनी नहीं है मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी की। फिर मोहम्मद हुसैन बटालवी गए रहमहुल्लाह, वो गए तो उन्होंने जाके किताबें रखी इसकी, फतह इस्लाम, तौज़ीउल मराम, अज़ाला हाम, ख्वाजा गुलाम फरीद के आगे रख के उनको कहा ये पढ़ें ख्वाजा साहब, जिसको आपने खत लिखे हैं या आपके मुरीदों ने खत लिखे हैं, ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ इसने। वो फिर कानों को हाथ लगाया ख्वाजा साहब ने कि मुझे तो नहीं पता था इस बात का, वो तो बहावलपुर बहुत दूर है ना वहां से कादियान से। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था इसका, बहरहाल आज के बाद हम नहीं लिखेंगे कोई खदशात। तो कहने का मतलब यह है कि दीगर सूफिया का काम था, बल्कि ख्वाजा साहब का भी काम था कि खुद आते और इसको गर्दन से दबोच कर इससे हिसाब मांगते कि दिखाओ हमारे सामने, पहले तुम कोई दिखाओ ना निशान, फिर तुम हिंदुओं के सामने और ईसाइयों के सामने जाके दिखाना, पहले हमारे सामने दिखाओ कौन सा मोइजा, कौन सा तुम हवा में उड़ के दिखा सकते। ये मैं कह रहा था। तो मुहतरम वो अपना मसलक नहीं था बताता मिर्जा कादियानी, वो कहता था कि मैं मुसलमान हूँ, खुद उसने लिखा वो नहीं हुआ। सूफी मैंटी लोगों टूर तो सीधे जाइए, साधे होते हैं। मैंटी टूर ये जाइए तो गल करन देनी है। म्यूट है मैं। हाँ, सूफी हजरात जो होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, जो जिनका ज्यादा वही आपको पता है कि वो होते हैं। आप अगर इसने इसको उसके सामने झूठ बोला, जो बंदा नबूवत के बारे में झूठ बोला, तो उनके सामने भी झूठ बोला होगा जब उनके सामने ये बात आई। लेकिन मुझे आप ये बताइए ना नजीर साहब, इसका निकाह किसने पढ़ाया था मिर्जा कादियानी का? जब इसका निकाह पढ़ाया था तब तो इसने कोई दावा नहीं ना, 84 में तो कुछ भी नहीं, उस वक्त तो बराइन अहमदिया लिख रहा था ना, उसमें तो कोई इसकी गलती नहीं थी ना। वो तारीफें किसने की है? बराइन अहमदिया की तारीफें हमने किसने की की? भाईजान, हमने की, हमारे उलमा ने की। मेरी आई लव यू माय डियर, इस हमाम में सब नंगे हैं। हाँ मैं मानता हूँ ना, जब एक बंदा गलती अपनी मान लेता है ना, तो आप भी मान लें गलती कि सूफिया ने इसकी गर्दन मैंने नहीं बोला दबोची। जनाब अली मैंने बोला इस हमाम में सब नंगे हैं। मैंने अच्छा तो वही मैं, गलती की। जब इसने अंजाम आतम में जिन लोगों को मुबाहले की दावत दी, उनमें ख्वाजा साहब का पहले नाम डाल दिया। हालांकि ख्वाजा साहब तो बहावलपुर है, ख्वाजा साहब तो नहीं ना इसको कोई आके काउंटर तो नहीं कर रहे थे। ख्वाजा साहब ने इसका कोई रद्द नहीं किया था। इसने 1891 में दावा किया मसीह मौद होने का। 91 गया, 92 गया, 93 गया, 94, 95, 96, 6 साल बाद इसने किताब में ख्वाजा साहब का और कुछ और हमारे कुछ 100-200 उलमा की एक फहरिस्त है, वहां पर उनको मुबाहले का चैलेंज दे दिया कि मेरे साथ मुबाहला कर लो। ख्वाजा साहब ने जब ये मुबाहले में अपना नाम पढ़ा या उनके मुरीदों ने उनको बताया कि ये बंदा है, ये आपसे मुबाहला करना चाहता है, फिर तो ख्वाजा साहब को आना चाहिए था ना कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम मेरा नाम मुबाहले के लिए क्यों शाया कर रहे हो। ख्वाजा साहब ने उधर से ही खाते लिख के कह दिया मुझे माफी करो। जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्होंने तो खुद तस्लीम किया कि भाई हमें गलती लगी इसको पहचानने में, लेकिन एक बंदा है, शरीयत कहती है कि एक बंदा है, वो जब तक कुफर या कलमात मुंह से ना उगले आप उस पर फतवा नहीं दे सकते भाईजान। उलमा तो जाहिर के शरीयत के पाबंद है ना, सूफिया तो बहुत आगे की डिग्री है, उलमा तो ज़ाहिरी उलूम के वारिस हैं, और शरीयत कहती है कि एक बंदा है उसके दिल में कुफर भी छुपा हुआ है, अगर उसकी जुबान पर कुफर नहीं आता तो आप उसकी तकफीर नहीं कर सकते। तो जिस जमाने में इसका निकाह पढ़ाया सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी ने, जिस जमाने में शेख बटालवी ने इस पर रिव्यू लिख कर दिया, उस जमाने में ये कोई कुफर तो नहीं कर रहा था ना, सारे उलमा इसकी हमायत कर रहे थे। मतलब जिसके पास भी किसी ने कोई शिकायत की है, ये इसकी शिकायत लेकर हमारे उलमा कुछ गए सहारनपुर में और गंगो में, मौलाना रशीद अहमद गंगोई के पास और वहाँ देवबंद में, तो उन्होंने नहीं माना। मौलाना यकूब नानोतवी ने नानोत में गए, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं कौन सा कुफर है दिखाओ हमारे सामने पेश करो, तो वो आ गए वापस। जब तक आप किसी का कुफर पेश नहीं कर सकते उस पर सख्ती तो नहीं की जा सकती। उलमा तो थे पाबंद उस ज़ाहिरी
अमल के। मैं कहता हूं कि जब सूफिया का नाम लिखा इसने मुबाहले के लिए, तो सूफिया, आप कहते हैं कि सूफिया ने इस्लाम फैलाया, तो सूफिया का काम था ना गर्दन दबोचते। ये है मेरा अफसोस का मरहला। बाकी वो सूफिया मेरे ही सूफिया हैं, मैं कोई उनके कोई अगेंस्ट नहीं हूं। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूं कि आप कह रहे थे कि भाई मैं मुसलमान हूं सूफिया की वजह से, आपने ये कहा तो मैंने इसलिए ये बात कही। नहीं, ये डिस्कशन, इस टाइप का डिस्कशन तो होना चाहिए ना, कि और इंसान को ये जो मसले की जंग है इसमें नहीं पड़ना चाहिए। नहीं इसमें देखना ये है कि एक उम्मती का क्या हमारे लिए क्या फराइज आयद किए गए हैं। हमें अपने नबी की तरफ देखना है, हमें अपने मसलकों को नहीं देखना। मैं उसमें यकीन नहीं रखता हूँ। मेरे सबसे अजीज दोस्त जो है जिनसे मैं सीखता भी हूँ वो है डॉक्टर जुबैर हाफिज साहब। उनके साथ मेरे ताल्लुकात, इम्तियाज भाई है, अदनान भाई है, वो तो सारे हैं, लेकिन हम इकट्ठे चलते हैं, कभी हम ये डिस्कस नहीं करते। रही बात ये कि हमको जिस चीज की तरफ देखना है उसमें हम भटक रहे हैं। आप इसके अलावा भी दोस्तों को आप बता देना जो होली स्पिरिट साहब आपके दोस्त चंगा जी, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी सुल्तान साहब। ये मैं बात नहीं करने देता फिर। वो मैं सिर्फ बताना चाह रहा था अमर भाई कि इनके दोस्त से को है सिर्फ। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह आपसे बात होगी सुल्तान साहब जरूर। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई।